Hello बच्चों, welcome to my channel NCERT Expert. Today we will revise chapter 5. Name of the chapter is acids, bases and salts. First, salts, acids, curd, lemon juice, orange juice, vinegar. Taste sure. These substances taste sure because they contain acids. The chemical nature of these substances is acidic. The acids in these substances are natural acids. Bases. Substances which are bitter in taste and feel soapy on touching are known as bases. The nature of such substances is said to be basic. Examples of acids are baking soda, soap, calcium hydroxide. Natural solutions. The solutions which do not change the color of litmus paper and they are neither acidic nor basic are known as neutral solutions. Examples of neutral solutions are water, cooking oil, etc. Indicators. What are indicators? These are the special type of substances used to test whether a substance is acidic or basic. These substances are known as indicators. How they function? The indicators change their color when added to a solution containing an acidic or a basic substance. Examples of indicators: litmus, turmeric, and China rose petals. These are naturally occurring indicators. First, we will study about litmus. It is extracted from lichens. It has purple color in distilled water and it is available as red and blue litmus paper. ये आपको फिगर दिखा रखी है, ये रेड लिटमस पेपर है और ये ब्लू लिटमस पेपर है. एसिड्स चेंज ब्लू लिटमस पेपर टू रेड कलर. अगर हमारे पास ब्लू लिटमस पेपर है और उसको हम एसिडिक सॉल्यूशन में डालेंगे तो वो रेड कलर का हो जाएगा. और जो हमारे पास रेड लिटमस पेपर है इसको हम बेसिस में डालेंगे तो ये ब्लू कलर का हो जाएगा. नाउ सेकेंड naturally occurring indicator is turmeric. It is yellow in color. Bases change turmeric paper yellow to red. Bases show red color. For example, in case of yellow stain on a cloth turns to red if soap is applied on it because soap is basic. But acids show no change on yellow turmeric paper. China rose indicator. It is also a natural indicator. It turns acidic solutions dark pink and basic solutions green color. Acid rain. Rain containing excess of acids is acid rain. It becomes acidic due to carbon dioxide, sulfur dioxide and nitrogen dioxide, which dissolve in the raindrops and form carbonic acid, sulfuric acid and nitric acid. It causes damage to the buildings, historical monuments, plants and animals. Artificial indicators are phenolphthalein. Now, neutralization in everyday life. Neutralization is a process in which acids and bases react to form salt and water. It is in everyday life, neutralization is very helpful. Examples are indigestion, ant bite, soil treatment, and factory waste. Now come to the NCERT solutions. First question is differences between acids and bases. Acids. First, they are sour in taste. Bases are bitter in taste and soapy in touch. Examples of acids: lemon juice, orange juice, curd, and tamarind. Examples of bases: calcium hydroxide, sodium hydroxide. Question number 2. Ammonia is found in many household products such as window cleaners. It turns red litmus blue. What is its nature? Ammonia is found in many household products such as window cleaners and it turns red litmus blue. It shows that ammonia is basic in nature. Question number 3.
Name the source from which litmus solution is obtained. What is the use of this solution? Litmus is obtained from the lichens and it is used to check whether a substance is acidic or basic. Question number 4. Is the distilled water acidic, basic or neutral? How would you verify it? डिस्टिल वाटर कैसा है, एसिडिक है, बेसिक है या न्यूट्रल है, और हम इसको कैसे वेरीफाई करेंगे? Distilled water is neutral and we can verify it by using on blue and red litmus paper. Distilled water does not change the color of blue or red litmus paper. It shows that it is neutral. Next question 5. Describe the process of neutralization with the help of an example. The reaction between an acid and a base is known as neutralization. When the acidic solution is mixed with a basic solution, both the solutions neutralize the effect of each other. Salt and water are produced in this process with the evolution of heat. Acid plus base gives salt and water plus heat. Examples: HCl hydrochloric acid reacts with sodium hydroxide. It gives sodium chloride, water and heat. True and false. Nitric acid turns red litmus blue. It is false. Sodium hydroxide turns blue litmus red. False. Third, sodium hydroxide and hydrochloric acid neutralize each other and form salt and water. It is true. Fourth, indicator is a substance which shows different colors in acidic and basic medium solutions. True. Tooth decay is caused by the presence of a base. It is false. Question number 7. Dorji has a few bottles of soft drink in his restaurant. डॉर्जी का एक रेस्टोरेंट है और उसका सॉफ्ट ड्रिंक्स का काम है, उसके पास कुछ बॉटल्स हैं सॉफ्ट ड्रिंक की, बट अनफॉर्चुनेटली दीज आर नॉट लेबल्ड, लेकिन इनके ऊपर लिखा हुआ नहीं है, लेबल्ड नहीं है, एंड ही हैज टू सर्व द ड्रिंक्स ऑन द डिमांड ऑफ द कस्टमर्स. उसे क्या करना है, जैसे उसके कस्टमर्स की डिमांड है उसी हिसाब से उसको ड्रिंक सर्व करना है. वन कस्टमर वांट्स एसिडिक, अनदर वांट्स बेसिक एंड थर्ड वांट्स न्यूट्रल. How will Dorji decide which drink is to be served? तो डोरजी कैसे डिसाइड करेगा कि किसको कौन सा सर्व करना है? Since drinks are edible है मतलब इनको हम टेस्ट कर सकते हैं. So Dorji can take the decision by tasting the drinks. The drink which is sure acidic drink है वो. The drink which is bitter basic drink है. Neutral drink will have no taste, उसका कोई टेस्ट नहीं आएगा. In this way, Dorji can serve the drinks to his customers according to their demand. Explain why an antacid tablet is taken when you suffer from acidity. During acidity, excess of acid is produced in the stomach. Acidity में जो stomach के अंदर HCl produce होता है उसकी quantity बहुत ज़्यादा होती है. Antacid जो acid को कम करता है, such as milk of magnesia. Milk of magnesia एक antacid tablet है. इसके अंदर मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है. ये क्या करता है, इट न्यूट्रलाइज द इफेक्ट ऑफ द एक्सेसिव एसिड प्रोड्यूस्ड इन द स्टमक एंड वी गेट रिलीफ फ्रॉम द एसिडिटी. कैलामिन लोशन इज अप्लाइड ऑन द स्किन व्हेन एन आंट बाइट्स. जब कोई मधुमक्खी आपको काट जाती है तो कैलामिन सॉल्यूशन स्किन के ऊपर लगाते हैं. ऐसा क्यों करते हैं? When an ant bites, it injects formic acid into the skin. जब कोई आंट हमें काट जाती है तो ये हमारी स्किन के अंदर फॉर्मिक एसिड इंजेक्ट कर देती है. कैलामिन सॉल्यूशन इज अप्लाइड ऑन द स्किन. कैलामिन सॉल्यूशन जो हम अप्लाई करते हैं उसके अंदर जिंक कार्बोनेट होता है जो कि बेसिक होता है. फॉर्मिक एसिड है, ये एसिड है, और कैलामिन लोशन के अंदर बेसिक है, बेसिक नेचर है कैलामिन लोशन का. तो दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को न्यूट्रलाइज कर देते हैं जिससे हमें थोड़ा आराम मिलता है. When an ant bites, it injects formic acid into the skin.
Calamine solution is applied on the skin. It contains zinc carbonate, which is basic and neutralizes the effect of the formic acid. C. Factory waste is neutralized before disposing it into the water bodies. जो फैक्ट्रीज में वेस्ट निकलता है उसको पहले न्यूट्रलाइज किया जाता है, इसके बाद इसको वाटर बॉडीज में छोड़ दिया जाता है। ऐसा क्यों करते हैं? फैक्ट्री वेस्ट कंटेन एसिड्स। जो फैक्ट्री वेस्ट होता है इसके अंदर बहुत सारे एसिड्स होते हैं। इफ इट इज अलाउड टू फ्लो इनटू द रिवर और पॉन्ड, अगर इसको हम एसिड के साथ ही ऐसे ही रिवर या पॉन्ड के अंदर डाल देंगे तो एसिड्स क्या करेंगे? दे विल किल द एक्वेटिक लाइफ। जितने भी जीव हैं पानी के अंदर वो मर जाएंगे। सो फैक्ट्री वेस्ट इज न्यूट्रलाइज बाय एडिंग बेसिक सब्सटेंसेस। तो फैक्ट्री वेस्ट को न्यूट्रलाइज कर देते हैं, इसके अंदर बेसिक सब्सटेंसेस को ऐड कर देते हैं। Three liquids are given to you. One is HCl, another is sodium hydroxide, third is sugar solution. How will you identify them? You have only turmeric indicator. आपके पास 3 liquids हैं। फर्स्ट है HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सेकेंड NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड है, और थर्ड है आपके पास सुगर सॉल्यूशन। आपको इंडिकेटर दिया हुआ है टर्मेरिक इंडिकेटर, तो आप टर्मेरिक इंडिकेटर को यूज करके बताओगे कि कौन सा एसिड है, कौन सा बेस है और कौन सा शुगर सॉल्यूशन है। सपोज करते हैं हम HCl, NaOH और शुगर सॉल्यूशन को नेम दे देते हैं A, B और C। अब हम क्या करेंगे? इन तीनों की एक एक ड्रॉप टर्मेरिक पेपर के ऊपर रखेंगे। टर्मेरिक पेपर कैसे बनाते हैं? जो हम किचन में यूज करते हैं टिश्यू पेपर, अगर हम उसको थोड़ी देर के लिए हल्दी जिसके अंदर पानी मिला के रखेंगे, टिश्यू पेपर उसके अंदर डालेंगे तो वो येलो कलर हल्दी का उसके ऊपर आ जाएगा। फिर उसको हम सुखा लेंगे, सुखाने के बाद भी हमारा टर्मेरिक पेपर रेडी हो जाएगा। अब हम तीनों सॉल्यूशंस में से एक एक ड्रॉप टर्मेरिक पेपर के ऊपर अलग अलग जगह पे डालेंगे। इन तीनों केसेस में एक केस में रेड कलर आएगा, तो ये क्या शो करता है कि जो जिस सॉल्यूशन से रेड कलर आता है वो बेस है। अब हमारे पास क्या क्या बच जाएगा? हमारे पास एक एसिड बच गया और एक हमारे पास शुगर सॉल्यूशन आ गया, और बेस को हमने आइडेंटिफाई कर लिया। टर्मेरिक शोज नो कलर चेंज विद एसिड एंड शुगर सॉल्यूशन। टर्मेरिक सिर्फ बेस के साथ तो कलर चेंज दिखाता है, लेकिन एसिड और शुगर सॉल्यूशन के साथ कोई कलर चेंज शो नहीं करता। So we have to adopt some other method. तो हमें दूसरा मेथड अडॉप्ट करना पड़ेगा। ये दिखा रखा है जैसे A, B और C, तो इसमें से सपोज कर लो कि B रेड कलर देता है और ये शो करता है कि ये बेसिक सॉल्यूशन है। अब क्या करेंगे? हमारे पास क्या बच गया? A और हमारे पास C, ये दो चीजें बच जाती हैं। अब इसमें एक एसिड है और एक शुगर सॉल्यूशन है। अब हमें देखना है कि इसमें से कौन सा एसिड है और कौन सा शुगर सॉल्यूशन है। तो हम क्या करेंगे? जो हमारे पास बी बेस है उसको हम एक ड्रॉप या फ्यू ड्रॉप्स लेंगे इसकी बेस की, और हम शुगर सॉल्यूशन के अंदर डाल देंगे। शुगर सॉल्यूशन हमें पता है कि न्यूट्रल होता है, तो इन दोनों को मिक्स करके हम टर्मेरिक पेपर के ऊपर डालेंगे। टर्मेरिक पेपर के ऊपर रेड कलर आता है, तो ये हमारा सॉल्यूशन ओवरऑल बेसिक है क्योंकि इसके अंदर NaOH है। लेकिन जो शुगर सॉल्यूशन है वो न्यूट्रल है, इसलिए शो कर रहा है कि इसके अंदर सिर्फ बेस ही है, यानी कि इसके अंदर HCl नहीं है। तो ये जो रेड कलर आ रहा है इससे शो करता है कि NaOH के साथ हमारा शुगर सॉल्यूशन है। अब हम क्या करेंगे? अगेन हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस को यूज करना है। हम कुछ ड्रॉप्स बेस की लेंगे, कुछ ड्रॉप्स, वैसे तो दो चीजें निकलने के बाद हमें पता ही चल जाएगा कि क्या है, लेकिन हम फिर इसको अच्छे से प्रूव करेंगे। तो हम जो बेस है इसकी कुछ ड्रॉप्स लेंगे, और जो हमारा A बचा हुआ है सॉल्यूशन इसकी कुछ ड्रॉप्स लेंगे, दोनों को हम मिक्स कर लेंगे और टर्मेरिक पेपर के ऊपर
रखेंगे। टर्मेरिक पेपर के ऊपर कोई चेंज नहीं आता। चेंज क्यों नहीं आता? क्योंकि बी है हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये हमारा बेस है, और जो हमारा रिमेनिंग ए बचा हुआ है ये हमारा एसिड है। तो एसिड और बेस के बीच में न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो जाती है। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होने के बाद हमारा साल्ट प्रोड्यूस होता है। साल्ट क्या होता है? न्यूट्रल होता है, इसलिए टर्मेरिक के पेपर के ऊपर कोई भी चेंज नहीं आता। तो इस तरह से हम 3 लिक्विड्स हैं जो हमारे को दे रखे हैं, इनको हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 10, blue litmus paper is dipped in a solution, it remains blue, what is the nature of the solution, explain। ब्लू लिटमस पेपर को सॉल्यूशन में डिप करते हैं, लेकिन ब्लू लिटमस पेपर का कलर ब्लू ही रहता है। इट मीन्स द सॉल्यूशन इज नॉट एसिडिक। तो इसका मतलब ये है, अगर ये एसिडिक होता तो ये ब्लू कलर का जो लिटमस पेपर था ये रेड कलर का हो जाता। इसका मतलब ये सॉल्यूशन जो है एसिडिक नहीं है। तो क्या हो सकता है? इट मे बी बेसिक और न्यूट्रल, या तो ये बेसिक है या फिर ये न्यूट्रल है। नाउ पुट ए ड्रॉप ऑफ दिस सॉल्यूशन ऑन रेड लिटमस पेपर। अब हम देखना है कि भी बेसिक है या न्यूट्रल है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इस सॉल्यूशन की एक ड्रॉप हम रेड लिटमस पेपर के ऊपर डालेंगे। अगर ये ब्लू टर्न हो जाएगा, इट टर्न्स ब्लू, देन इट इज बेसिक। इफ नो कलर चेंज अकर्स देन इट इज न्यूट्रल। ऐसे हम निकाल सकते हैं कि ये सॉल्यूशन हमारा किस नेचर का है। नाउ क्वेश्चन नंबर 11, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। हमें स्टेटमेंट्स दी हुई हैं ए बी सी डी। हमें इसमें से बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। बोथ एसिड्स एंड बेसिस चेंज कलर ऑफ ऑल द इंडिकेटर्स, दिस स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। If an indicator gives a color change with an acid, it does not give a change with a base. C, if an indicator changes color with a base, it does not change color with an acid. D, change of color in an acid and a base depends on the type of indicator। ये स्टेटमेंट जो डी है, दिस इज करेक्ट वन। पेज 80, पेज है हमारा 57। डिड यू नो, क्या आप जानते हैं, ईच सेल इन आवर बॉडी कंटेन्स एन एसिड, द डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड और डीएनए। हमारी बॉडी किससे बनी होती है? सेल से। तो हमारी बॉडी जो सेल से बनी होती है, उसके जो सेल है वो सबसे बेसिक यूनिट है, सबसे छोटी यूनिट हमारी बॉडी की। हर सेल के अंदर डीएनए होता है। डीएनए क्या है? एसिड होता है एक तरह का, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड, ये इसकी फुल फॉर्म है। इसका फंक्शन क्या होता है? इट कंट्रोल्स एवरी फीचर ऑफ द बॉडी सच एज लुक, color of our eyes, our height. Proteins that build part of our cells are also made of amino acids. Fats in our body also contain fatty acids। हमारी बॉडी के अंदर इस तरह से एसिड्स अलग अलग पाए जाते हैं। एनसीईआरटी सॉल्यूशंस हो गए इस चैप्टर के, और मेन इसका मैंने समरी करा दी है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए बाय बाय बच्चों।